Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 7, Tenali Raman and the Horse Trader of your Wordsworth English Reader book. I had written and explained the word meanings and the meaning of phrases. Now today I'm going to read and continue with the explanation of this lesson 7. So all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page 64, lesson 7, Tenali Raman and the Horse Trader. Children, please take out your Wordsworth English Reader book, turn to page 64 as I'm going to continue with lesson 7, Tenali Raman and the Horse Trader. Children, this is a drama that can be enacted in the class. And the characters in the drama are narrator, King Krishnadev Rai, a horse trader, Tenali Raman, courtiers, and the setting is the court of King Krishnadev Rai in the 16th century. The king is on his throne surrounded by his courtiers. Narrator. King Krishnadev Rai was the most famous king of the Vijayanagar Empire. He liked horses very much and had a passion for collecting horses. He was known for having the most wonderful stables in the country with the best horses. He never thought twice about the money when it came to buying the land's best and well-bred horses. One day, a horse trader who belonged to a foreign country came to King Krishnadev Rai's court. Scene 1. Horse trader. Your Majesty, I have some beautiful horses which I want to sell. They are the best Arabian steeds that you will ever get. I have brought one horse as a sample to show you. It is my finest. If you like it, I can get more such horses for you. Krishnadev Rai. Oh yes. Show me the horse, please. Scene 2. Narrator. The horse trader and the king went outside the palace to look at the Arabian horse brought by the trader. The king saw the majestic horse standing outside the palace. Krishnadev Rai, looking at the horse thoughtfully. This is the only breed missing from my stable. Horse trader, trying to convince the king. This is the finest horse, Your Majesty. More horses such as this will surely become an asset for your stable. Krishnadev Rai, impulsively, I will buy them all. Horse trader, at your service, Your Majesty. I only need an advance of 5,000 gold coins. I'll then bring the whole group of horses in 2 days. Narrator. The king paid him 5,000 gold coins as an advance and the trader promised to return in 2 days before leaving. 2 weeks have passed. There has been no news of the horse trader. He hasn't come, neither has he brought any of the Arabian horses. The king is getting increasingly impatient as well as worried. To distract himself, he decides to take a walk in his garden. Scene 3. Krishnadev Rai muttering to himself, where is the trader? I want those Arabian horses in my stables. Why isn't he bringing them? Suddenly he sees Tenali Raman sitting in the corner of the garden and writing on a piece of paper. Scene 4. Krishnadev Rai. What are you writing, Tenali Raman? Tenali Raman carried on writing furiously without looking at the emperor. Krishnadev Rai demandingly. Raman, look up. I command you to show me what you are writing at once. Tenali Raman. Your Majesty, I am making a list of the biggest fools of the Vijayanagar kingdom. Krishnadev Rai curiously. Let me take a look. Tenali Raman reluctantly. No, Your Majesty, you may not like it. Krishnadev Rai sternly. I am the Emperor Tenali Raman. I want to see the names of the people in there. I am sure what you have written must be quite true. Tenali Raman hands him the paper. The king looks at the paper and is furious. Krishnadev Rai angrily. Raman, how dare you? How can you write my name at the top of this list? I am the emperor. This is the height of impertinence. I want an explanation. You think I am a fool indeed? Tenali Raman calmly. Your Majesty,
You gave a complete stranger 5,000 gold coins thinking that he will return. Any man who does so and expects the stranger to return is surely a fool. Krishna Dev Rai. Oh, so this is what is bothering you. You really think the trader won't return? What if he does return? What will you do then? Tenali Raman cheekily. If he returns, I will put his name at the top of the list instead of yours. Krishna Dev Rai apologetically. I understand what you are saying, Tenali. In future, I'll always take major decisions sensibly. I will also consult you on the important matters of the kingdom. So children, this was the reading. Now I'm going to start with the explanation. बेटा ये एक ड्रामा है और इस ड्रामा में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब सेटिंग जो है वो है कि कोर्ट है, राजा का पूरा कोर्ट दरबार लगा हुआ है और ये 16th सेंचुरी का दरबार लगा हुआ है। किंग कृष्णदेव राय का दरबार है और किंग अपने थ्रोन पे, थ्रोन मतलब सिंहासन में बैठे हुआ है और उसके चारों तरफ उसके दरबारी जो कोर्टियर्स है, दरबार में कोर्ट में जो लोग काम करते हैं, दरबार में काम करते हैं, उनको कोर्टियर्स कहते हैं। नाउ नरेटर, अब जो कहानी सुनाने वाला है उसने कहानी स्टार्ट की। किंग कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय जो है सबसे फेमस किंग थे विजयनगर एम्पायर के। एम्पायर मीन्स द एंटायर किंगडम। ही लाइक्ड हॉर्सेस वेरी मच, उनको घोड़े बहुत पसंद थे। एंड हैड अ पैशन, और उनको जुनून था घोड़ों को खरीदने का और अपने स्टेबल में रखने का। He was known for having the most wonderful stables in the country with the best horses. और उनको जाना जाता था कि उनके मतलब पूरी कंट्री में कि उनके पास सबसे अच्छे घोड़े हैं उनके wonderful stables में. Stables place where horses are kept and bred. He never thought twice about the money when it came to buying the land's best and well-bred horses. और कभी भी जब अच्छे घोड़ों को खरीदने की बात आती तो वो कभी भी सोचते ही नहीं थे कि कितना पैसा लगेगा, उनको तो बस अच्छे घोड़े उनके स्टेबल में चाहिए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मतलब नेवर थॉट ट्वाइस मीन्स कि कभी भी ने सोचा ही नहीं कि मैं अगर ये करूंगा तो ये मेरे लिए फायदे का सौदा है नुकसान का। अच्छे घोड़ों को देख के वो कभी सोचते ही नहीं थे। यूज्ड टू इमीडिएटली गो फॉर बाइंग दी हॉर्सेस। One day, a horse trader who belonged to a foreign country came to King Krishnadev Rai's court. एक बार एक घोड़े का व्यापारी, हॉर्स ट्रेडर, वो किंग कृष्णदेव राय के कोर्ट में आया और वो एक फॉरेन कंट्री से आया था, नॉट फ्रॉम द सेम कंट्री। वो एक विदेशी ट्रेडर था। नाउ सीन 1, हॉर्स ट्रेडर आया है और योर मैजेस्टी, राजा को ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे एड्रेस करते हैं, योर मैजेस्टी, आई हैव सम ब्यूटिफुल हॉर्सेस विच आई वांट टू सेल। उसने राजा को इन्फॉर्म किया कि मेरे पास कुछ बहुत ब्यूटीफुल हॉर्सेस हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। दे आर द बेस्ट अरेबियन स्टीड्स दैट यू विल एवर गेट, और वो अरेबिया के सबसे अच्छे घोड़े हैं जो आपको शायद ही कहीं और मिलेंगे। आई हैव ब्रॉट वन हॉर्स एज अ सैंपल टू शो यू, और मैं एक घोड़ा एज अ सैंपल आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इट इज माई फाइनेस्ट, वो मेरे सबसे अच्छे घोड़ों में से एक है। इफ यू लाइक इट आई कैन गेट मोर सच हॉर्सेस फॉर यू। और उस ट्रेडर ने कहा कि अगर आपको एक घोड़ा पसंद आता है तो मैं उसके जैसे आपके लिए और घोड़े ले आऊंगा। कृष्णदेव राय, ओह यस, शो मी दी हॉर्स प्लीज। कृष्णदेव राय ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, मुझे घोड़ा दिखाओ। सीन 2, अब सीन 2 आपको दिख रहा है ना, पैलेस के बाहर कृष्णदेव राय को वो हॉर्स ट्रेडर घोड़ा दिखा रहा है। नरेटर, the horse trader and the king went outside the palace to look at the Arabian horse brought by the trader. अब किंग कृष्णदेव राय हॉर्स ट्रेडर के संग पैलेस के बाहर गए, क्या देखने के लिए? वो हॉर्स जो ट्रेडर उनको दिखाना चाह रहा था। दिस इज द हॉर्स, यू कैन से द किंग एंड द ट्रेडर। फाइन। द किंग सॉ द मैजेस्टिक हॉर्स स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस। किंग ने वो मैजेस्टिक हॉर्स देखा जो उनके पैलेस के बाहर खड़ा हुआ था। कृष्णदेव राय लुकिंग एट द हॉर्स थॉटफुली। किंग कृष्णदेव राय वो बहुत देर तक घोड़े को देखते रहे और कुछ सोच रहे थे मन ही मन। दिस इज द ओनली ब्रीड मिसिंग फ्रॉम माई स्टेबल। उन्होंने कहा यही घोड़े की ब्रीड है जो मेरे अस्तबल स्टेबल में नहीं।
हॉर्स ट्रेडर ट्राइंग टू कन्विंस द किंग. अब हॉर्स ट्रेडर किंग को कन्विंस कर रहा है. कन्विंस करना, उनको मनाना. This is the finest horse, your majesty. More horses such as this will surely become an asset for your stables. अब वो हॉर्स ट्रेडर को तो किंग को मनाना था घोड़ा खरीदने के लिए, तो उसने कहा ये सबसे अच्छा घोड़ा है, और ऐसे और घोड़े आपके स्टेबल में आपका असेट बन जाएंगे. असेट मीन्स कुछ वैल्यूबल चीज, है ना, विच कॉस्ट अ लॉट. कृष्णदेव राय इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे कहना, आई विल बाय देम ऑल. और कृष्णदेव राय ने ना कुछ सोचा ना समझा, इम्पल्सिवली और कह दिया कि मैं सारे घोड़े खरीद दूंगा. हॉर्स ट्रेडर, एट योर सर्विस योर मैजेस्टी. और हॉर्स ट्रेडर, उसने कहा मैं तो आपकी सेवा के लिए हूं योर मैजेस्टी. आई ओनली नीड एन एडवांस ऑफ 5,000 गोल्ड कॉइन्स. और हॉर्स ट्रेडर ने किंग कृष्णदेव राय को क्या कहा कि मुझे 5,000 गोल्ड कॉइन्स एडवांस चाहिए. I'll then bring the whole group of horses in 2 days. और आप मुझे 5,000 गोल्ड कॉइन्स एडवांस दे दीजिए और मैं 2 दिन के अंदर ऐसे पूरे ग्रुप ऑफ हॉर्सेस आपके लिए ले आऊंगा. नरेटर, जो स्टोरी सुनाने वाला है, वो बोल रहे हैं द किंग पेड हिम 5,000 गोल्ड कॉइन्स एज एन एडवांस. और किंग ने उसको 5,000 गोल्ड कॉइन्स एज एन एडवांस दे दिए. एंड द ट्रेडर प्रॉमिस टू रिटर्न इन 2 days बिफोर लीविंग. और वो ट्रेडर, उसने तो 5,000 गोल्ड कॉइन्स लिए, किंग को प्रॉमिस किया कि मैं 2 दिन में सारे घोड़े लेके आ जाऊंगा. 2 weeks have passed. अब इस बात को कितने दिन हो गए? 2 weeks. That means 14 days have passed. There has been no news of the horse traders. 2 दिन की बात कह के गया था, 14 days हो गए और उस हॉर्स ट्रेडर की कोई न्यूज भी नहीं आई. He hasn't come. Neither has he brought any of the Arabian horses. ना तो वो हॉर्स ट्रेडर आया, ना उसकी कोई खबर आई, ना वो उसने घोड़े भिजवाए. जो अरेबियन स्ट्रीट्स की बात करके गया था, कुछ भी नहीं उसने किया. द किंग इज गेटिंग इंक्रीजिंगली इम्पेशेंट. अब किंग, 2 दिन की बात कही थी, 14 डेज हो गए. अब किंग बहुत इम्पेशेंट, एकदम बेचैन हो गए, एज वेल एज वर्ल्ड. और उनको चिंता भी होने लग गई कि भाई वो तो मेरे लिए हॉर्स लाने वाला था, 5,000 गोल्ड कॉइन्स लेके गया और अभी तक उसका पता ही नहीं, 14 डेज हो गए. टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, डिस्ट्रैक्ट करना मतलब अपना ध्यान, जो चीज डिस्टर्ब करे उससे हटाने के लिए, ही डिसाइड्स टू टेक अ वॉक इन द गार्डन. तो किंग बहुत परेशान था, तो उसने, किंग ने अपने आप को ध्यान हटाने के लिए, किंग ने सोचा चलो मैं गार्डन में थोड़ा वॉक करके आता. नाउ सीन 3. अब ये गार्डन का सीन है. और इफ यू कैन सी द सीन ऑफ गार्डन इन द बुक on page 66. कृष्णदेव राय मटरिंग टू हिमसेल्फ. कृष्णदेव राय अपने आप से बात करते हुए, मटर करना, खुद से बात करना, दूसरा कोई ना सुन पाए. वेयर इज द हॉर्स ट्रेडर. किंग क्या बुदबुदा रहे थे कि वेयर इज द हॉर्स ट्रेडर, वो हॉर्स ट्रेडर कहाँ गया. आई वॉन्ट दोज अरेबियन हॉर्सेज इन माई स्टेबल. मुझे कुछ भी करके वो अरेबियन हॉर्सेस, जैसा कि उसने मुझे सैंपल हॉर्स दिखाया था, वैसे मेरे स्टेबल में मुझे अरेबियन हॉर्सेस चाहिए. Why isn't he bringing them? वो लेके क्यों नहीं आ रहा है मेरे लिए? Suddenly he sees Tenali Raman sitting in the corner of the garden and writing on a piece of paper. तभी what does the king sees? कि तेनाली रमन गार्डन में एक कॉर्नर में बैठ के पेपर के ऊपर कुछ लिख रहे थे. Scene 4. कृष्णदेव राय. What are you writing, तेनाली रमन? कृष्णदेव राय ने जब देखा कि तेनाली रमन लिख रहे हैं कुछ बैठ के, है ना, you can all see. तो कृष्णदेव राय ने पूछा व्हाट आर यू राइटिंग तेनाली रमन, तुम क्या लिख रहे हो. तेनाली रमन कैरिड ऑन राइटिंग फ्यूरियसली विदाउट लुकिंग एट द एम्परर. और तेनाली रमन एक ग्रेट स्पीड से लिखते चले गए. उन्होंने एम्परर की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं. कृष्णदेव राय डिमांडिंगली मीन्स ऑर्डर करके, रमन लुक अप, आई कमांड यू टू शो मी व्हाट यू आर राइटिंग एट वंस. अब वो तो राजा थे, उन्होंने देखा कि जब कृष्णदेव राय राजा की बात तेनाली रमन सुन ही नहीं रहा है, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि तेनाली रमन ऊपर देखो, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ कि मुझे दिखाओ तुम क्या लिख रहे हो. क्या ऐसा लिख रहे हो कि तुम, मैं किंग हूं, मैं आया हूं, तुम मेरी तरफ भी नहीं देख रहे हो. तेनाली रमन, योर मैजेस्टी, आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट फूल्स ऑफ द विजयनगर किंगडम. तो तेनाली रमन ने आंसर किया कि योर मैजेस्टी, मैं विजयनगर किंगडम में जो जितने सबसे बड़े बेवकूफ हैं, फूल्स मतलब बेवकूफ, है ना,
who lack wisdom, जिनमें समझदारी नहीं है, मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ. कृष्णदेव राय क्यूरियसली मीन्स ईगर टू नो, कोई चीज बहुत वांटिंग टू नो, बहुत क्यूरियस होते हैं ना, तो इसे लेट मी टेक अ लुक. तुम जो फूल्स की बिगेस्ट फूल्स विजयनगर किंगडम के फूल्स की लिस्ट बना रहे हो, मुझे दिखाओ. तेनाली रमन रिलक्टेंटली, नो योर मेजेस्टी यू मे नॉट लाइक इट. तब तेनाली रमन ने रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंग, कोई चीज जो इच्छा न करे, हाँ, और उन्होंने ऐसे रोकते हुए बोला कि नहीं आप मत देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप देखोगे तो. कृष्णदेव राय स्टर्नली मीन्स फर्मली, एकदम रिजिड हो गए. I am the Emperor Tenali Raman. I want to see the names of the people in there. तो कृष्णदेव राय ने बोला कि मैं तो एम्परर हूँ, मैं तो राजा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लिस्ट में जो तुमने नेम लिखे मैं उनको जरूर देखना चाहता. आई एम श्योर वॉट यू हैव रिटन मस्ट बी क्वाइट ट्रू. और मुझे पक्का विश्वास है कि जो तुमने लिखा होगा वो एकदम सही होगा. तेनाली रमन hands him the paper. The kings look at the paper and is furious. तेनाली रमन किंग कृष्णदेव राय को पेपर, जो लिस्ट ऑफ फूल्स की बेवकूफों की वो लिस्ट बना रहे थे, वो किंग को हैंड ओवर कर देते हैं. और किंग जैसे ही पेपर को देखते हैं, ही इज फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं. कृष्णदेव राय एंग्रीली, रमन हाउ डेयर यू मीन्स कृष्णदेव राय गुस्से से तेनाली रमन को बोलते हैं कि रमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ कैन यू राइट माई नेम एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट. तुमने इस फूल्स की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर कैसे तुम लिख सकते हो. आई एम द एम्परर, मैं तो राजा हूं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राजा का नाम ही बेवकूफों की लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया. दिस इज द हाइट ऑफ इम्पर्टिनेंस, मतलब ये तो तुमने हद ही पार कर दी है ना, कि तुम अपने आप को इतना बोल्ड समझने लग गए हो, तुम इतने रूड हो गए कि तुमने ये भी नहीं सोचा है कि मैं राजा का नाम सबसे ऊपर फूल्स की लिस्ट में लिख रहा हूं. आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन, तुम मुझे अब भी एक्सप्लेन करो कि क्यों तुमने मेरा नाम लिखा. यू थिंक आई एम अ फूल इंडीड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं. किसने पूछा. किंग कृष्णदेव राय ने तेनाली रमन से पूछा. तेनाली रमन कामली मीन्स एकदम शांत तरीके से. योर मेजेस्टी you gave a complete stranger 5,000 gold coins thinking that he will return. तो तेनाली रमन ने बोला कि महाराज आपने तो 5,000 गोल्ड कॉइन्स एक स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन, एक अजनबी इंसान को दे दिए, ये सोच के कि वो लौट के आएगा आपके पास. एनी मैन हु डज सो and expects the stranger to return is surely a fool. और कोई भी आदमी किसी अजनबी को ऐसे गोल्ड कॉइन्स देता है और सोचता है कि वो वापस आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता. कृष्णदेव राय ने भी तो बिना सोचे समझे स्ट्रेंजर को 5,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए थे, सोच के कि वो उनके लिए बढ़िया हॉर्सेस लेके आएगा. कृष्णदेव राय, ओह सो दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग यू. तो कृष्णदेव राय ने पूछा, अच्छा तो यही तुमको बॉदर कर रहा है. यू रियली थिंक द ट्रेडर वोंट रिटर्न, तुमको क्या सच में ऐसा लगता है कि वो जो हॉर्स ट्रेडर है वो नहीं लौट के आएगा. व्हाट इफ ही डज रिटर्न्स, व्हाट विल यू डू देन. अगर मान लो वो आ गया तो तब तुम क्या करोगे. तेनाली रमन चीकीली, और तेनाली रमन तब बेशरमों की तरह स्माइल करते हुए बोलता, इफ ही रिटर्न्स आई विल पुट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इंस्टेड ऑफ योर्स. तो तेनाली रमन ने बोला अगर वो वापस आ जाता है तो मैं इस फूल्स की लिस्ट में से आपका नाम सबसे ऊपर से काट के उसका नाम सबसे ऊपर कर दूंगा. कि कोई बेवकूफी होगा जो 5,000 गोल्ड कॉइन्स उसको मिल गया और वो चला गया, वापस क्यों आएगा वो, isn't it? Now Krishnadev Rai must have realized his mistake, so apologetically means feeling sorry. अपनी गलती रियलाइज करने को हम apologetically बोलते हैं. तो कृष्णदेव राय ने भी अपनी गलती रियलाइज की. And then he said, I understand what you're saying. मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो. तेनाली, in future, I will always take major decisions sensibly. और उन्होंने तेनाली को बोला कि अब आगे से फ्यूचर में मैं जितने भी मेजर मतलब बड़े डिसीजंस हैं उनको बहुत सेंसिबली लूंगा. सेंसिबली मीन्स शोइंग विजडम, समझदारी से, अक्ल से लूंगा. ऐसे बेवकूफी में इम्पल्सिव होके किसी को कुछ भी नहीं कह दूंगा और ना दूंगा.
I will also consult you on the important matters of the kingdom. और मैं तुम्हारी भी राय लूंगा, किंगडम के जितने भी जरूरी मैं डिसीजंस लूंगा राज्य के, उन सब में तुम्हारी मैं राय लूंगा. So I hope you all have understood lesson 7, Tenali Raman and the horse trader, how Tenali Raman made the king realize that he had become a fool. The horse trader had fooled him. He took away the 5,000 gold coins from making a false promise to the king that he'll return with the finest Arabian steeds, but he vanished with the gold coins and the king had become a fool. So what is the moral of the story? That beware of strangers, do not trust these strangers blindly. Fine? So that's all for today, children. Please do read this lesson. I'll be continuing with the comprehension exercises of this lesson in my next video. Thank you, children. Have a good day ahead.